Entrepreneurial mindset is about questioning the status quo. If you do not question the status quo, you will remain a monkey. Celebrate entrepreneurs. We need to support the startup ecosystem. We all will have to continue to learn new skill, new technology, new use cases. Life is not about having all the skills by yourself, but rather knowing the contact of person who does. Obviously, we need to find the right balance between what we need to do for today and we also need to innovate for tomorrow. बस दो तीन ही चीज़ें करनी होती हैं, एक तो यूटर्न मत मान लेना और एक रुक मत जाना। धीरे भी चलोगे तो पहुंच जाओगे। Any product that removes friction from the desire will always win. Be to the development and strengthening of the economy. It is a very tough thing because so the more you are able to do that, the happier, content. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All I need to know is that we're holding on. We rise up from the dust into the Come on, let the applause continue. Ashneer is in the house. Gracing us at IIT Bombay with all his experience. And, wow. So firstly, could we have a mic? Do we have a mic in place for Ashneer? Or do you want me to run to? Ashneer, we can do that. Like, hello Ashneer, how are you? Can we get a quick mic in place? Come on, I can't keep doing that. All right. कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, and just for the next few minutes we're going to be having a conversation with Ashneer. We'll get the mic in place, put the mic and everyone says wow. I think Mr. Grover, that's the impact you have. My first question, please, if you can go ahead. Mic time पे आ जाएगा. आईआईटी के लड़के अपनी इनकेपेबिलिटी तो पता ही है. I think we got the flavor right from the start. All right, starting with my first question, of course, you authored a book, Doglapan, The Truth About Life and Startups. I want to understand from you, in real life, how do you gauge the term Doglapan and how do you identify in a real life situation? कौन कैसा है, कैसा behave कर रहा है? Because I know you've made that comment, you've said it so many times, perfectly identified, let's say.
So what's your take on that? In real life, how do you identify? यार एक तो पहले हिंदी बोलो यार. मतलब ये लड़की तुम्हारे को 15 मिनट से इतना बेवकूफ बना रही है. मतलब मैं पीछे खड़ा हूं. बोल रही है टॉप 100 वुमेन इन मीडिया, तुम ताली बजा रहे हो. मैंने तो उसके बारे में सुना नहीं पहले. दूसरा एक बात समझो, ये एमसी ने बोल दिया कि भाई मतलब फ्लैश लगा लो, तो मतलब ये नहीं जमूरों की तरह फ्लैश निकाल के खड़े हो. जब तुम फ्लैश निकालते हो ना, सामने से तुम्हारी शक्ल छुप जाती है, फिर फ्लैश दिखती है. ठीक है, तो तुमसे बैकग्राउंड का काम करा रही है, अपनी फोटो अच्छी आ जाए इसलिए. इसमें इसकी शक्ल दिखेगी, पीछे फ्लैश दिखेगी, बस कुछ और नहीं होगा. तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, मैं आंसर नहीं कर रहा. Mr. Grover, it's me being a दोगलापन. I think that's a rightly put out way. मैं ही हूँ दोगलापन, मैं accept करती हूँ. आपको समझ आना चाहिए. अच्छा, going to the next one. Success, is it about being diplomatic? या आपको लगता है कि कोई लगाना चाहिए चीजों में? हिंदी में, अच्छा ठीक है, चलो हिंदी में अश्नीर, एक चीज आपसे मेरे को पूछनी है कि जब आप सक्सेस के बारे में बात करते हैं, आपको लगता है कि डायरेक्ट बात करना बेटर है या स्वीट कोटेड तरीके में बात करना सही रहता है? मतलब फिर से बकवास क्वेश्चन. मतलब इसको मैं क्या जवाब दूं? इसका तो एक ही जवाब है, स्वीट कोटेड करना चाहिए. मतलब मेरे से पूछ रही है यार, सीधी बात करना. अच्छा अश्नीर, ओके, लेट्स गेट टू वन थिंग. मैं आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछती हूँ, जो टीम ने बोला है. ठीक है, लेट्स गेट टू दैट. ये बनावटी पॉलिटिकली करेक्ट क्वेश्चंस में आंसर नहीं करने वाला हूँ. कुछ अच्छे क्वेश्चन. ठीक है, आप सब रेडी रहना क्वेश्चंस पूछने के लिए. हम आपके तरफ आने वाले हैं थोड़ी देर में. अश्नीर, जस्ट एक चीज आपसे पूछनी है टीम बिल्डिंग के बारे में. आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, टीम बिल्डिंग आपको कितना लगता है कि कितना महत्व उसका होता है इन टीम बिल्डिंग? इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट. सी एज अ फाउंडर तो बहुत ही सिंपल है कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट उतारा है तो डिलीवर तो करना ही पड़ेगा. सही बात है. तो अगर तुम सारा काम खुद करते रहोगे तो करते रहो, कोई एंड ही नहीं है उसका. असली फाउंडर तो तुम तब बनोगे जब तुम दूसरों से निकाल रहे हो काम, और उनसे वो काम निकाल रहे हो जो कि तुम खुद करते हो उससे भी बेटर डिलीवर कर पा रहे हो. सो स्टार्टअप करने में, बिजनेस करने में टीम बहुत जरूरी है. यू कैनॉट बी अ सिंगल मैन आर्मी. सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बट एंड में वाट तुम्हारी लग जाएगी अगर सब कुछ तुम ही कर रहे हो. सो वेरी वेरी क्रिटिकल टू बिल्ड अ गुड टीम. एंड काम डेलीकेट करना किसी को सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि मैं सामने वाले से सब कुछ बेटर कर लूंगा. बट अगर ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि तुम दूसरे बंदे से सारा काम बेटर कर सकते हो, बट उसको करना नहीं है, कराना है लोगों से. एंड व्हेन यू लर्न दैट आर्ट, या और व्हेन यू नो कि हाँ ठीक है मेरे में स्किल आ गई है कि मैं काम किसी को दे सकता हूँ, दैट्स व्हेन यू बिकम अ ट्रू फाउंडर इन सम सेंस. अब अश्नीर, जैसा कि हमने शार्क टैंक में भी देखा है, एंड इवन उससे पहले आपने कई जगह इन्वेस्ट किया है. आपके क्या पैरामीटर्स होते हैं व्हेन यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट? आप किस चीज पर ज्यादा महत्व देते हैं? व्हाट इज दैट वन एस्पेक्ट और रादर फ्यू एस्पेक्ट्स जो आप ज्यादा फोकस करते हैं एंड यू फील कि ये धंधा इन्वेस्ट करने लायक है? वीड लाइक टू नो फ्रॉम यू. यार पैसे लगाने का एक ही उसूल है कि पैसा वापस आना चाहिए एक तो,
और बढ़ के आना चाहिए। एंड उस जिस पे पैसा लगा रहे हो वो पैसा बना के देगा या नहीं देगा इज द ओनली थिंग दैट एन इन्वेस्टर शुड इवैल्यूएट। एंड मेरे लिए वो इवैल्यूएशन फाउंडर होता है या बंदा या बंदी होती है जिस पे पैसा लग रहा है। तो मेरे लिए 99% इट्स अबाउट द फाउंडर। फाउंडर अच्छा है, दम है और बड़ी चीज करने पे निकला है तो प्रोबेबिलिटी वाइज सक्सेस ही होगा, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। फाउंडर में दम नहीं है तो मतलब जिसको जितना मर्जी टाइम दे दो एंड में वो फेल ही होना है। तो फॉर मी फाउंडर इज द ओनली थिंग दैट आई स्टॉप एट। एंड बाकी बिजनेस में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। अगर सामने एक बंदा है जो जेन्युइनली स्मार्ट है और वो अपनी नौकरी या बाकी कुछ काम छोड़ के एक काम के पीछे लगा हुआ है तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा इवेंचुअली। सो या फॉर मी इट्स जस्ट पुटिंग मनी ऑन द फाउंडर। ऑल्सो अश्नीर, अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं ना, लेट्स से आर यूथ आउट हियर, मेनी जिनसे मैंने अभी मौका मेरे को मिला है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, मेनी ऑफ देम वांट टू हैव देयर ओन स्टार्टअप। बट आपको एग्जैक्टली पता है स्टार्टअप की जर्नी, यू एक्सपीरियंस्ड इट, यू आल्सो इन्वेस्टेड इन सो मेनी मल्टीपल स्टार्टअप्स, आपने इन्वेस्ट भी किया है। आप क्या एक पीस ऑफ एडवाइस इन सब यूथ को देना चाहोगे जो आज इस पड़ाव पर हैं कि वो डिसाइड करे कि नेक्स्ट व्हाट इज अप इन लाइफ, एंड अगर वो स्टार्टअप कर रहे हैं व्हाट इज इट दैट यू थिंक दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर? यार देखो, जो दिखता है ना और जो बिकता है वो तो ग्लैमर है। कि किसी ने बहुत $1 बिलियन की कंपनी बना ली, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, दिखता और बिकता यही है। बट वो रियलिटी नहीं है। एंड IITians को समझाने के लिए बहुत सिंपल है। बाहर जो इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा है उसको IITian का ग्लैमर दिखता है, बट JEE क्रैक करने के लिए जिस अंधेरे से वो गुजर के आया है वो तो किसी को नहीं दिख रहा। तो इवन स्टार्टअप में भी वही है, आपको जो दिख रहा है वो इवेंचुअल प्रोडक्ट दिख रहा है, बट जो अंधेरा है, जो हार्डवर्क है, जो लगता है वो आई थिंक JEE या उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी का है, या उसकी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी का है। तो बस एक बात याद रखो कि मतलब अगर ग्लैमर देख के कूदे हो ना तो डूबोगे। अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने कूदे हो या अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं यही करना है लाइफ में, तो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है। बट ग्लैमर के पीछे मत कूदो। फाउंडर बोलने से कुछ नहीं होता, आजकल हर दूसरा बंदा फाउंडर है। तो इट्स लाइक मिस्टर, पहले मिस्टर लिखते थे ना, पहले मिस्टर, अब उसकी जगह फाउंडर लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोई तवज्जो नहीं है उस बात में। अश्नीर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हर एक एवरी पर्सन हैज दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट आता है जिंदगी में जब आप डिसाइड करते हो कि आपको ये चीज करनी है, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू भारत पे और इवन योर अर्लियर वेंचर्स जहाँ पर आपने इस इन्वेस्टमेंट सीरीज को लीड किया है, आपका कोई ऐसे एक इंटेग्रल मोमेंट आया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, wherein you felt, let's say you were feeling low, but आपने कुछ सोचकर you went on the other side, because एक ऐसी चीज होती है being a successful entrepreneur wherein बहुत सारे lows आते हैं लाइफ में, and then you of course have to keep continuing and persevering. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी perseverance के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, और एक ऐसा अगर आप हमें मोमेंट बता पाए, because the youth is looking at you today, and if something you can tell us from your real life as well. परसिवियरेंस नहीं पता, हम तो दिल्ली में जिद बोलते हैं उसको। और दिल्ली के लड़के ना बहुत ही जिद्दी होते हैं वैसे। क्या बोला? I think we can censor that. नहीं अच्छा यार, गाली वाली पढ़नी चाहिए बीच में।
मतलब अभी तो दिल्ली में होता, अभी तो यहाँ पे लट बच गए होते। ये तो बेचारे शरीफ बच्चे हैं बॉम्बे के। तो ऐसा मतलब जिदपन की तो मेरी बहुत हरकतें हैं, मतलब ना सुनना पसंद ही नहीं है। बट एक मोमेंट तब था कि जब मेरे को समझ आ गया था कि अब मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे को पता है। मैं ग्रोफर्स के बाद अर्नस्ट एंड यंग जो गया था 15 मिनट के लिए, 15 मिनट राइट। तो मेरे को पार्टनर बना रहे थे स्टार्टअप प्रैक्टिस का, पैसे भी अच्छे दे रहे थे। मैं दफ्तर घुसा हूँ, उन्होंने मेरे को राउंड लगवाया पूरे दफ्तर का, और मेरे को ना ऐसे सांस चढ़ने लगी, मतलब ऐसे लगे हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब इतने मरे हुए लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। सीरियसली ऐसी फीलिंग आ रही, मतलब मैं ग्रोफर्स में थे, साला हर रोज कुछ फटा रहता था, ठीक है। कभी पुलिस वाला उठाने आ गया, कभी हमारे ही डिलीवरी बॉयज हमको उठाने आ गए कि साले हमारे पैसे नहीं दिए तुमने। अब तुम्हारी बेल होएगी, तुमको बेल करानी पड़ेगी हमसे। या इतनी भसड़ होती थी ना स्टार्टअप में। एंड उसके बाद आप कॉर्पोरेट ऑफिस जाओ ना, तो वो टेस्ट है। वो 15 मिनट में मैं हाथ जोड़ के वापस आया हूँ कि भाई मेरे से नहीं होगा। और उस दिन मेरे को पता लग गया था मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। सो दैट, अब उसके बाद करना क्या है तब वो भी नहीं पता था। तो हाइंडसाइट में ऐसा नहीं कोई शाहरुख खान टाइप मूवमेंट नहीं आता कि दारू की बोतल लेके बैठे और आज अब पता लग गया अब ये करना है। बट हाँ, क्या नहीं करना है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी पता लग जाता है। And you know, before we open the floor, जो सारे यहाँ पे यूथ प्रेजेंट हैं उनसे हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे विद अशनीर। फाइनल थिंग, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, देयर आर मेनी टाइम्स यू नो वी डोंट ले इम्पोर्टेंस ऑन फैमिली लाइफ। अगर आप फैमिली लाइफ एंड बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो, यू कैन टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज हमने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं कि जहाँ पर अगर आप सक्सेस की दौड़ में भाग रहे हो, यू माइट लूज योर फैमिली और योर डियर फ्रेंड्स। अशनीर, ऐसा कोई आप टिप हमें देना चाहेंगे और योर एक्सपीरियंस ऑन दिस फ्रंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरे को ये नहीं लगता यार। देखो, वो ये वर्क लाइफ बैलेंस ना, ये सब फालतू की बातें हैं। सीरियसली, मतलब वो किसी एमएनसी के इंटरव्यू में अच्छी लगती है करने के लिए। भाई जब काम है और काम की इंटेंसिटी है तो काम ज्यादा कर लो। तब ये गिल्ट मत पालो कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। जब काम नहीं है, वेले हो, तो फैमिली को टाइम ज्यादा दे दो। तब ये गिल्ट मत पालो कि मैं काम नहीं कर रहा। एंड कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं कि इतने घंटे फैमिली को देने हैं, इतने घंटे काम को देने हैं। सबका नंबर अंदर से ही आना है। आधा टाइम मेरे को लगता है जिनकी फैमिली लाइफ खराब होती है ना, अपनी बीवी से भाग रहे होते हैं और वो दफ्तर में भी बैठे होते हैं कि घर ना जाना पड़े। तो दैट इज द ओनली रीजन आई कैन थिंक कि किसी की फैमिली लाइफ स्क्रूड अप होएगी। बट अदरवाइज सब हो जाता है यार। मतलब मैंने कभी क्या कहते हैं 24-24, 20-20 घंटे काम नहीं किया है। हाँ, जब जरूरत पड़ी है 14 घंटे काम कर लिया। उसके बियॉन्ड तो इनह्यूमन है, मतलब वो भी आप महीने में एक बार ही कर लोगे, 14 घंटा लगा दोगे। तो ये जो लोग ओवर ग्लैमराइज करते हैं ना कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ या इतने घंटे काम करना चाहिए या 4 बजे उठना चाहिए सुबह, वो सब आपको गलत चीजें बेच रहे, मत खरीदो वो। थैंक यू सो मच अशनीर, लेट्स गिव हिम अप्लॉज। मैं चाहूंगी अभी हैंडल फेलियर तो सिंपल है, बाय बीइंग सक्सेसफुल। शार्क टैंक में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब स्पेसिफिक सवाल पूछो ना, मतलब किसके आपका एक्सपीरियंस, दे आर आस्किंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन शार्क टैंक, आई बिलीव वो क्वेश्चन था। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस में किसके साथ एक्सपीरियंस? सी मोस्ट मेमोरेबल पिच अगर हम पूछना चाहें, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? अहमद नहीं, ठीक है, क्लियर नो। पैसा मिला शार्क टैंक से, पैसा कितना मिला?
क्या क्वेश्चन है, क्या बोला इसने? पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हो? अबे यहाँ से अच्छे सवाल आ रहे हैं, कुछ आगे आगे पूछ लो यार, समझ नहीं आ रहा। या एक बंदा बोलो। आप सेकंड हैंड कार क्यों खरीदते हैं? फर्स्ट देख, जितने में एक फर्स्ट हैंड गाड़ी आएगी ना, उतने में 3 सेकंड हैंड आ जाती है। बनोगी का क्या मतलब है? अच्छा, before we get to more questions from the audience, the team just instructed कि हमारे पास थोड़ा और टाइम है. If we can take that from you, Mr. Grover. हाँ, मेरे पास तो टाइम ही था, तू ही जल्दी भगा रही थी। बाप मार सर, मेरी कहाँ हैसियत कि मैं आपको जल्दी भगाऊंगी, but okay. Ashneer, I want to ask you एक ऐसा चीज, your vision, अगर मैं चाहूँ, like your plan ahead, is there any dream which you feel is still unfulfilled? आप, like everyone has their milestones ना, जैसे आप एक, like I have my personal milestones, इस एज तक ये करना है, उस एज तक वो करना है. In your startups you had your milestones business wise, but ऐसा कोई आपका ड्रीम है current which you would like to tell the audience? ये ड्रीम बहुत सिंपल है। धंधा बनाना था वो बना लिया, पैसा बनाना था वो बना लिया, फेम चाहिए था वो कर लिया, किताब नहीं लिखनी थी पर वो भी लिख ली। अब मेरे को नेता बनना है। You already have a lot of supporters. Okay, Ashni. अभी प्रॉब्लम ये है ना कि IIT कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं आता। अपना नेता कैसा हो? अपना नेता कैसा हो? चलो, मेरे कैंपेनिंग तो इस वाले साइड से आ रही है। भाई 2024 में नारे लगाना, भी रुक जाओ। We'll get to that. We'll get to the entire campaign of Mr. Grover. Okay, so Ashni 2.0, next phase is where आप मतलब genuinely politician बनने का सोच रहे हैं, नेता. I'm being very frank out here. हाँ, मतलब लोग इतना ऑफेंड क्यों हो जाते हैं नेता बनने के नाम से? मतलब क्यों नहीं? मतलब केजरीवाल एक लौता आईटीएम। अच्छा, तो अगर one day you get to be the CM, एक जो मूवी बनी थी काफी इंटरेस्टिंग, one day Mr. Grover gets to be the CM. I know अभी एक दिन में वो कुछ जो उन्होंने दिखाया था वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो आप क्या करेंगे? शार्क टैंक बैन कर दो। मैं एक दिन के लिए क्यों बनूंगा यार, मतलब 5 साल के लिए। बहुत मेजर चेंजेस लाने वाला हूँ, ऐसे ऊपर काम नहीं करना, मतलब फंडामेंटल चेंजेस लाने। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं नेता बन गया, इनकम टैक्स तो 10% पे कैप हो जाएगा, बस 10% के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देगा। अश्लील, एक कोई ऐसी चेंज which you feel will help startups in India, in case अगर कोई आपको startup policy या उसमें कोई change लाना है, one point which you feel is very important. यार, स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत सिंपल है। ESOP का जो सिस्टम है ना,
उसमें चेंज लाना है। बेचारे इतने IPOs हुए, किसी एम्प्लॉय के पैसे नहीं बने IPO में, क्योंकि सबको ESOP मिले हुए थे। लोगों ने 40% टैक्स दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जो बंदा 10 साल से नौकरी कर रहा है पेटीएम में, जोमेटो में, पॉलिसी बाजार में, उसको अपने शेयर्स लेने के लिए मार्केट प्राइस पे 40% टैक्स देना पड़ता है। और जो इन्वेस्टर ने 2 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। मतलब इन्वेस्टर 10% टैक्स देके निकल लिया या 20%, और एम्प्लॉय 40% टैक्स देके अभी भी कंपनी में फंसा हुआ है। तो ये तो मेजर मतलब झोल है टैक्स सिस्टम में, और हाँ दोगलापन ही है। एंड ये तो मतलब इमीडिएटली एड्रेस होना चाहिए। एंड क्योंकि मेरे को लगता है सबका पैसा बनना चाहिए। एम्प्लॉय, अगर फाउंडर का पैसा बन रहा है, इन्वेस्टर का पैसा बन रहा है, तो एम्प्लॉय का पैसा क्यों नहीं बन रहा? एम्प्लॉय के साथ ये नेगेटिव बर्ताव क्यों किया जाए? तो वो एक चेंज करना जरूरी है। Mr. Grover, मैं ये जानना चाहूँगी, and of course everybody in the audience would like to know, would be आपकी journey when you thought of भारत पे, and जब आपने वो पूरा execute किया। यहाँ पर हमने सुबह जब बात की थी, there was a lot of talk on need analysis कि customer क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप product लाइए। Some spoke about passion होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। नीड तो होगा ही कस्टमर का, बट कैन द फाउंडर एग्जीक्यूट इट राइट? लाइक यू सेड कि आप देखते हैं कि फाउंडर में कितना दम है। तो आपका पर्सनल जर्नी कैसा रहा है व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट भारत पे, इफ आई मे आस्क रिगार्डिंग वन ऑफ द कंपनीज, अगर आप उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें। ये ना फिलर क्वेश्चन होते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्या बोलूं मैं? नहीं, मतलब आपने किस बेसिस पे वो कंपनी लॉन्च की? यू वुड हैव सम थॉट प्रोसेस ना? सी बहुत सिंपल है, आपको अपने आप को कस्टमर के शूज में रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा या नहीं करूंगा। आधा टाइम हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं हमने बना लिया तो बहुत सही है, और जब मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर हम अपने आप को बोलने लगते हैं, ओ मैं तो अहेड ऑफ टाइम हूँ, माई प्रोडक्ट इज अर्ली फॉर द मार्केट। बट उसका कोई मतलब नहीं है, बस मार्केट में वो प्रोडक्ट उतारो जो उस दिन बिके। आपने 2 साल लेट उतारा या 6 महीने पहले उतारा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं मार्केट में। तो उस टाइम पे क्या नीड है मार्केट की, इज वॉट द मार्केट कंज्यूम। एंड आई थिंक मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि क्या मार्केट को अभी क्या चाहिए, and thankfully it always worked। so and of course execution है यार। जब तुम सक्सेसफुल होते हो, तुम्हारे नंबर्स आ रहे होते हैं ना, तो तुम्हारा अपने आप बॉडी दिमाग अलाइन हो जाता है कि यही करना है या नेक्स्ट ये करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब तुम प्रोडक्ट उतारे जा रहे हो और कुछ नंबर्स आ ही नहीं रहे, देन आपका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। बट फंडामेंटली कंज्यूमर की नीड at that point of time fulfill करते हैं, that's it। Correct. Let's give him a big round of applause on that point. We'll also, there were few questions जो कि यहाँ पर in the front rows जिन्होंने raise किया था hand, if yes sir। जीवन में अंधेरा रहता है, उसको कोई नहीं देखता। One second, लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आपका? अलास उतार चढ़ाव में आप क्या बताना चाहते हैं, वो सबक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बताते? सर मैंने किताब लिखी थी, उसमें लिख दिया सब। नहीं, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, किसी को ना दूसरे बंदे की डार्कनेस देखनी नहीं है, सबको अच्छी चीजें देखनी है। एंड इसलिए मैं जब बात भी करता हूँ ना, मैं डार्कनेस की बात इतनी करता नहीं हूँ, बिकॉज वो बोरिंग होती है।
वो जब किसी का मूड हो पढ़ने का, किताब में बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है कि क्या मिस्टेक्स करी, क्या डिप्रेसिंग था, क्या वर्कआउट नहीं करा, क्या गलत हुआ, वो सब किताब में लिख दिया है मैंने। तो मैं जब बोलता हूँ तो फिर वो सब चीजें रिपीट नहीं करता जो किताब में लिखी हुई है। पढ़ लो सर, अब तो 250 रुपए की धक्के खा रही है कम। We had one more question at the back. Sir, can we have the mic? यहाँ पर फ्री में मिलेगी क्या? अरे अभी फ्री में मैं यहाँ पे ना हूँ, किताब को Okay, 1 second. Before, if anyone here wants to have a question, just raise your hand. Team आएगी आपके पास माइक के लिए. Ashneer, एक क्वेश्चन जो मैंने सुना था कि what is your life's biggest regret? एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा था. I don't know, अभी life is very long, but what is your biggest regret till date? मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, मैं क्यों रिग्रेट मारूं? तुम मारो बैठ के। मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं यार, लाइफ गोज थ्रू इट्स अप्स एंड डाउन्स, राइट? अब बैठ के तुम ये थोड़ा बोलते रहोगे कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता। आई डोंट लिव इन द पास्ट, बाय द वे, तो नो रिग्रेट्स एट ऑल। We'll get यहाँ पर एक बार माइक पास करिए सर, यहाँ पर हैंड रेज कर रहे हैं एट द बैक, वन इन द ब्लू एंड ग्रे। उससे पहले एक क्वेश्चन आया ऑडियंस से यहाँ पर। Women founders don't get funding in e-commerce. Your comment. अभी ये इतना वेरीफाइड है? ये अच्छा क्वेश्चन। तो भाई जितने इन्वेस्टर्स हैं वो है MCP, मेल शोविनिस्ट पिग्स, ठीक है? ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी इन्वेस्टर से, सब MCP हैं। वो एक फीमेल फाउंडर को ये समझते हैं कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसकी फैमिली रहेगी, एंड इसलिए वो बिकॉज एक फीमेल की एक बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है, एक बायोलॉजिकल साइकिल अलग होती है, उनको ये लगता है कि अगर इस पे पैसे लगा दिए और ये अपने बायोलॉजिकल साइकिल में अगर ये प्रेग्नेंट हो गई, ये बच्चे को देखने लग गई, तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? ये फैक्ट है, कोई नहीं बोलेगा खुल के, मैं यहाँ पे बोलने को तैयार हूँ। एंड देयरफॉर फीमेल फाउंडर्स हैव इट वेरी वेरी टफ। सोलो फीमेल फाउंडर आर एन एक्सट्रीम रेयरिटी बिकॉज ऑफ दिस। आपको हस्बैंड वाइफ फाउंडर फिर भी मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट करंट क्रॉप ऑफ इन्वेस्टर्स में किसी में दम नहीं है कि एक फीमेल फाउंडर को मेरिट पे एनालाइज कर ले और मेरिट पे पैसा लगा दे, ये फैक्ट है। सो इफ यू आर अ फीमेल फाउंडर एंड इफ यू आर एबल टू रेज मनी, kudos to you. सर, we've got, हाँ सर, आप क्वेश्चन पूछिए। आप जैसे राजनीति में आने की बात बता रहे हो, तो आने वाला भविष्य भारत का कैसा देखते हो? सर क्या बोला? आने वाला भविष्य भारत का कैसा देखते हो? फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का यार अच्छा ही होना चाहिए तभी आऊंगा ना, वरना क्या फायदा। नहीं मतलब मैं ओलो वर्ड चल रहा है, तो भारत का उसमें कैसा देखते हैं भाई? आगे भविष्य भारत का कैसा रहेगा? यार वो ठीक है, वो मंदी, मार्केट ऊपर वो जाना, नीचे जाना, ये सब साइकिल है। वो हर 7 साल में आती है, कभी 4 साल में भी आ जाती है, तो अभी वो साइकिल के थ्रू जा रहा है पूरा वर्ल्ड, एंड जेन्युइनली मंदी है, और अभी 2023 में तो और मंदी होने वाली है। इंडिया में तो अभी मंदी दिखी नहीं है बिल्कुल भी, इंडिया में भी मंदी होगी, बट वो टेम्परेरी चीजें हैं। फंडामेंटली इंडिया बहुत सही जगह पे है। Two more questions. We've got just 3 more minutes. या मेरी घड़ी में 15 मिनट है, इसकी घड़ी में 3 मिनट है, समझ नहीं आ रहा। यार we would love that. अगर इन्होंने 15 मिनट किए, मैं 15 मिनट लेके रहूंगी अभी। Are you guys ready? Okay. अच्छा चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन। Yes ma'am, out there.
advisor to business and work leaders, and the 9th time organizer, ladies and gentlemen, of the 10-minute million, none other than Mr. Ajit Khurana. Let's give him a big, big round of applause. TTMM is being led by him. I'd like you to meet Mr. Grover. And on that front, Mr. Grover, आपको कुछ idea कि हमारा next agenda क्या होने वाला है? Absolutely not. Okay. The TTMM we'd request you to launch with us, but before that, हम चाहेंगे कि investors join us on stage. Could we have the investors to please join us on the stage? The startups. So, on that note, with Mr. Grover being on the stage and our investors, and Mr. Yes. इन लोगों ने मेरे को बोला ये आज 5 करोड़ रुपए लगा के जाएंगे, तो अगर इन्होंने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, ठीक है? चलो, enjoy yourself. Okay, ladies and gentlemen, let's give him a big, big round of applause.